فوج امن اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں ساتھ دیتی رہے گی۔ فوج ترقی کے لیے بلوچستان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تربت کا دورہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکریٹری اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ آرمی چیف کو فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور بلوچستان کے سماجی اور معاشی حالات بہتر بنانے کی حکومتی اور عسکری کاوشوں سے آگاہ کیا۔ سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران فیلڈ مارشل کا گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ بھارت کا پاکستان سے تعلقات میں امریکی ثالثی قبول کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جنگ بندی کے لیے امریکی فون کالیں بھی تسلیم کر لی۔ کہا، جنگ کے دوران امریکہ کا فون آیا اور دیگر ممالک کا بھی فون آیا، یہ کوئی راز نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ بولے، ٹرمپ اپنے ملک کے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں۔ ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ امریکی صدر سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں، سخت بیانات عالمی سیاست میں ہلچل مچاتے ہیں۔ ماتلی ضلع بدین میں ایک بے گناہ شہری کا قتل ہوا۔ 8 جولائی کو 4 ملزمان عمیر اصغر، سجاد، عبید اور شکیل کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران ان کے راز سے لنکیجز ثابت ہوئے۔ یہ ثابت ہوا کہ اس ساری کارروائی کا ماسٹر مائنڈ ایک خلیجی ریاست میں رہائش پذیر بھارتی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ اور ہینڈلر سنجیو کمار عرف فوجی یہ ملوث تھا۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان نے میڈیا کو بتا دیا، بدین کے رہائشی عبدالرحمان کے قتل کی تفتیش سے بھارتی نیٹ ورک کا سراغ ملا۔ سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 8 جولائی کو را کے 6 کارندوں کو گرفتار کیا۔ را نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ سنجیو کمار عرف فوجی ہے، جو ایک خلیجی ملک میں مقیم ہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے بتایا، را نے علیحدگی پسند تنظیم کو سہولت کاری کے لیے استعمال کیا۔ ملزمان کی ٹریول ہسٹری بھی حاصل کر لی۔ مقتول عبدالرحمان کا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ذمہ دار تھا اور بے گناہ نشانہ بنا۔ باجوڑ میں جاری سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ الخوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ فتنہ الخوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا، جس میں خارجی نور ولی فتنہ الخوارج نے مقامی کمانڈرز کو باجوڑ چھوڑنے سے روک دیا۔ فتنہ الخوارج اعلامیہ میں باجوڑ آپریشن کو باجوڑ عوام پر ظلم قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ عوام سے کہا تھا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ فتنہ الخوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ کی عوام، کاروبار اور بچوں کا مستقبل محفوظ بنا رہی ہیں۔ معرکہ حق میں پاک فضائیہ اور چینی میزائلوں نے دنیا پر دھاک بٹھا دی۔ بھارت کے خلاف چینی میزائلوں کی کامیابی نے امریکہ کو میزائل پروگرام تیز کرنے پر مجبور کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے کامیاب آپریشن نے خطے میں فضائی برتری کا توازن تبدیل کر دیا، جس کے بعد امریکی فضائیہ اور بحریہ نے لاک ہینڈ مارٹن کے خفیہ منصوبے IEM-260 پر کام تیز کر دیا۔ امریکی ایئر فورس اور نیوی نے IEM-260 میزائل کی تیاری کے لیے مالی سال 2026 میں $1 ارب کی فنڈنگ کی درخواست کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے تاریخی دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمیشن اور بنگلہ دیش کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم کی پاکستان ہائی کمیشن آمد، نیشنل سٹیزن پارٹی کے وفد سے ملاقات۔ اسحاق ڈار بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملیں گے، اہم بنگلہ دیشی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے 13 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کیا جا رہا ہے۔
मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, कौमी डायलॉग पर बात होनी चाहिए। जब तक आप टेबल पर नहीं बैठेंगे और अपनी राय नहीं देंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को ज़मानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ़ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा कह जाते हैं। इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। पाकिस्तान है तो सियासत है। 9 मई के किरदार अब सज़ाओं से नहीं बच सकते। अवाम इन शर पसंदों के चेहरों को पहचान चुके। मुल्क अब धरनों और जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किसी दबाव में नहीं आएंगे, हुकूमत घबराहट का शिकार है, ऐसे फैसलों से ये डूब रही है। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे बेटों का वाहिद जुर्म ये है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयों से फैमिली पर दबाव डालना चाहती है ताकि बानी PTI को प्रेशराइज किया जा सके। अलीमा खान का दूसरा बेटा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार शेर शाह को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। जज मंजर अली गुल ने समाअत के बाद महफूज कर लिया जो बाद में सुनाया गया। दौरान समाअत जज ने मीडिया नुमाइंदगान को अदालत से निकाल दिया। कहा, आइंदा कोई मीडिया पर्सन मोबाइल लेकर अदालत में ना आए। शहरेज और शेर शाह जिना हाउस हमले में मुलव्वस थे और शवाहिद पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों पर सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। सानह 9 मई एक गद्दारी थी और उसके मुजरिमों को इंसाफ के मुकम्मल तकाज़ों का सामना करना होगा। जिना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेर शाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन नियाजी के साथ मौजूद था। शेर शाह पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। मुलजिम शेर शाह को पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया। दूसरे मुलजिम शहरेज खान को भी जिना हाउस पर हमले और मनसूबाबंदी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत और 4 दीवारी का ड्रामा मत खेलें। क्या चादर और 4 दीवारी सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की है, बाकियों की नहीं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जिसका दिल चाहता है 9 मई के मुल्जिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते डालने लग जाते हैं। क्या मरियम नवाज KP हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को शेल्टर फराहम करें? 9 मई मुकदमात में नामजद और मतलूब मुल्जिमान को हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के खतरनाक आउटब्रेक का खतरा। मुल्क के बेशतर अजला में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस के मौजूद होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज को ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास 27 अगस्त को वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। मुल्क में इंसदाद पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में यकसा टैरिफ के निफाज का फैसला। विफाकी काबीना ने यकसा माहाना टैरिफ एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी दे दी। इससे कबल के इलेक्ट्रिक के लिए अलग और बाकी मुल्क के लिए अलग माहाना एडजस्टमेंट का इत्तला किया जाता था। विफाकी काबीना ने इक्तसादी राबता कमेटी के 19 अगस्त के फैसले की मंजूरी दी। फैसले के तहत बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी या इजाफा दोनों सूरतों में मुल्क भर के लिए एक जैसा होगा। नए फैसले के तहत माहाना एडजस्टमेंट भी सहमाही और बुनियादी टैरिफ की तरह मुल्क भर के लिए यकसा हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात। दोनों जमातों का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हुकूमती वफ्द में हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ और नैयद बुखारी थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तो डेरो के गांव जंगीजा आमद। PPP शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थीं। बिलावल भुट्टो शहीद कांस्टेबल मुनीर अहमद सोमरू की रिहाइश गाह पहुंचे। साहिबजादे मुनीबुर रहमान, वालिद और दीगर फुरसा से ताज़ियत।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इंसदाद दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक तमाम वफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। भारत की आबी जारहियत से पाकिस्तानी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। पानी की आमद 1,98,886 क्यूसिक हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 74,858 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैले के तेज बहाव की वजह से बहावल नगर में मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल। बोंगा एहसान बीबी के करीब चरवाहा सैलाबी पानी में बह गया। तलाश भी जारी है। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज बिफर गया। पानी के तेज बहाव से मोजा झांबों का जमींदारा बंद टूट गया। उधर कोटद्दू में हेड तोसा बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगयानी। पानी एहसानपुर और गिरदो नवाह के इलाकों में दाखिल। ज़मीनी राबते मुनक़ता। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह मजीद बुलंद। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। कराची की फ़ज़ाओं पर बादलों का राज। न्यू कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। पंजाब में गुजरात, सियालकोट और लाला मूसा में बारिश का सिलसिला जारी। तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश। गुजरात के नशेबी इलाकों में पानी जमा। NDMA ने 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाबात के तरीक़ाकार का मामला तय न हो सका। जुडिशल कमीशन की ज़ैली कमेटी का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। ज़ैली कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस के इंतखाब का मयार तय न कर सकी। मामला वापस जुडिशल कमीशन को भेज दिया। कमेटी जजेस कारकर्दगी बारे कवायद पर दोबारा इजलास मुनक्किद करेगी। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजरों और सरमाएकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मईशत को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। डिजिटल सरमाएकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में छोटे सूबों की तश्कील का मुआशी मंजरनामा सामने आ गया। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले मंजरनामे में 12 छोटे सूबे कायम किए जा सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे मंसूबों का क़याम मुमकिन है। तीसरे मंजरनामे के मुताबिक 38 विफाकी डिवीजन्स कायम किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी में बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत। एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से मरियम नवाज़ का पुरतपाक खैर मकदम। नुमाइश से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर तरक्की देंगे। वज़ीर आला पंजाब को ग्रैंड रिंग का भी दौरा कराया गया। नुमाइश में तारीख रात में कौसे कज़ाह के उन्वान से वाटर एंड लाइट शो भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़।